ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ واضح ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہوگی۔ ایران اب بھی جوہری صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران ایران نے جوہری صلاحیت سے دستبردار ہونے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کی میری لینڈ میں صحافیوں سے گفتگو۔ آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنے والے فوجی جہازوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور سختی سے نمٹا جائے گا۔ آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ آبنائے ہرمز مکمل کنٹرول اور پاسداران بحریہ کی سمارٹ مینجمنٹ میں ہے۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، مصر کے وزیر خارجہ عبدالعاطی اور ترکی کے وزیر خارجہ حاقان فیدان کے ٹیلی فونک رابطے۔ نائب وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ویکینڈ پر جنگ بندی سے متعلق اپنی ذمہ داریوں پر مکمل عمل درآمد کرنے پر زور۔ پاکستان سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا اور خطے سمیت عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے بات چیت کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسلام آباد مذاکرات نے پائیدار سفارتی فریم ورک کی بنیاد رکھی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نیک نیتی پر مبنی اقدام کا شکریہ۔ پاکستان کے اداروں نے مذاکرات یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ مذاکرات کے انعقاد میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ مہمانوں کو پرامن اور باوقار ماحول کی فراہمی پر حکومت پاکستان سے اظہار تشکر۔ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ایران اسرائیل جنگ پر خاموشی اختیار کرنے پر مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ۔ کانگریسی لیڈر ششی تھرور کا پاکستان کے سفارتی طور پر بھارت سے بہتر کارکردگی دکھانے کا اعتراف۔ پاکستان بہترین سفارتکاری کی بدولت دنیا میں باوقار طاقت کے طور پر ابھر چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باوجود پاکستان نے محدود ذخائر سے توانائی کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ پاکستان نے صورتحال کو کئی دیگر ممالک کے مقابلے میں بہتر انداز میں سنبھالا۔ شمسی توانائی کی پیداوار تقریباً 8000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، جس نے حالیہ بحران کے دوران معیشت کو سہارا دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی بوسٹن میں پاکستان کے معاشی ایجنڈے پر پینل مباحثے سے خطاب۔ طویل مدتی معاشی استحکام کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ڈیجیٹل خلیج کم کرنے کے لیے ایس سی او کا اہم اقدام۔ ایس سی او نے افتخار آباد دھنبار آزاد کشمیر میں ٹیلی مواصلات سروسز 2G سے 4G میں اپ گریڈ کر دی۔ صارفین کو ہموار رابطہ، تیز رفتار ڈیٹا سروس اور مضبوط سگنلز دستیاب ہوں گے۔ جدید 4G سروسز سے طلباء، کاروباری افراد اور عام صارفین مستفید ہو سکیں گے۔ اہل علاقہ کا جدید سہولیات کی فراہمی پر ایس سی او سے اظہار تشکر۔ طالبان رجیم میں صحافیوں کی بلا جواز گرفتاریوں اور ظالمانہ سینسرشپ نے آزاد صحافت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ افغان میڈیا سپورٹ آرگنائزیشن کا افغان طالبان کی زیر حراست صحافیوں شکیب احمد نظری، بشیر حاطف، حمید فرہادی اور دیگر کی حالت زار پر تشویش کا اظہار۔ صحافیوں کی غیر قانونی حراست کو بین الاقوامی معاہدوں اور مہذب اقدار کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ ملک بھر میں رواں سال کی دوسری انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 19 اپریل تک جاری رہنے والے اس مہم کے دوران 4 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین فراہم کریں گے۔ اس مہم کے دوران وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی فراہم کی جائے گی۔
پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ رواں سال سجاول میں پولیو کا ایک کیس سامنے آیا۔ 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 94 لاکھ بچوں کو قوت مدافعت بڑھانے کے لیے وٹامن اے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 آج بھی ایک میچ کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے 22ویں میچ میں ملتان سلطانز کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی 9 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست، ملتان سلطانز 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اٹلی کے جینک سینر نے مونٹی کارلو ماسٹرز ٹائٹل جیت لیا۔ دفاعی چیمپئن اسپین کے کارلوس الکراز کو فائنل میں شکست۔ سینر دوبارہ عالمی نمبر 1 بن گئے۔ جینک سینر ایک ہی سیزن میں سن شائن ڈبل کے ساتھ مونٹی کارلو کا اعزاز جیتنے والے دنیا کے دوسرے کھلاڑی ہیں۔ جینک سینر کا یہ پہلے کلے کورٹ ماسٹر ٹائٹل ہے۔ اور فرانس میں شمال کا جہنم کے نام سے مشہور دنیا کی مشکل ترین ایک روزہ سائیکل ریس بیلجیم کے واؤٹ وین نے پیرس روبے جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ 4 مرتبہ کے ٹور ڈی فرانس چیمپئن سلوینیا کے تادیج پوگاچار دوسرے نمبر پر رہے۔ بیلجیم کے جیسپر سٹائن نے پوڈیم مکمل کیا۔ Milan San Remo 2020. Pogacar will have to wait another year to try to complete the set. This was Paris-Roubaix 2026. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں عثمان چوہدری۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کا ساتھ دوں گی رمیسہ قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان شامل کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ میری لینڈ میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ واضح ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہوگی۔ ایران اب بھی جوہری صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوران ایران نے جوہری صلاحیت سے دستبردار ہونے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اپنی آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ آبنہ ہرمز پر ان کا مکمل قبضہ ہے۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی جانب سے امریکی صدر کے بیان کے رد عمل میں کہا گیا ہے کہ آبنہ ہرمز مکمل کنٹرول اور پاسداران بحریہ کی اسمارٹ مینجمنٹ میں ہے۔ آبنہ ہرمز کے قریب پہنچنے والے فوجی جہازوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ان فوجی جہازوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے امریکی صدر کو آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کی جائے۔ کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلد ہی آپ $4 سے $5 والے پیٹرول کو یاد کیا کریں گے۔ باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ منطق کے ساتھ آگے آئے گا تو ہم بھی منطق کے ساتھ بات کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل سے بڑھ کر $102 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $103 فی بیرل جبکہ WTI خام تیل $105 فی بیرل سے بھی اوپر ٹریڈ ہونے لگا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین جنگ بندی سے متعلق اپنی ذمہ داریوں پر مکمل عمل درآمد کریں۔ نائب وزیر اعظم نے مکالمے کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا اور خطے سمیت عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے بات چیت کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے بھی گفتگو کی۔ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں نائب وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے انہیں آگاہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین اپنی جنگ بندی کی ذمہ داریوں کی پابندی کریں۔ ترک وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ مکالمے کے تسلسل اور خطے سمیت دنیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر خارجہ نے رواں ماہ کے آخر میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے لیے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو دعوت بھی دی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کے مابین ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے مصر کے وزیر خارجہ کو اسلام آباد مذاکرات اور فریقین کے درمیان رابطہ کاری میں پاکستان کی مسلسل کوششوں سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے تمام فریقین کے لیے تمام جنگ بندی کی پاسداری کو ناگزیر قرار دیا۔ انہوں نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے حصول کے لیے مسلسل مکالمے اور سفارتکاری کی ضرورت کو بھی دہرایا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بوسٹن میں ہاورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کے معاشی ایجنڈے پر ایک اہم پینل مباحثے میں شرکت کی۔ پاکستان کا معاشی ایجنڈا، استحکام، اصلاحات اور آگے کا لاہ عمل کے عنوان سے ہونے والی اعلیٰ سطح کی پینل ڈسکشن میں دنیا بھر سے ممتاز ماہرین معاشیات، پالیسی سازوں اور اوورسیز پاکستانیوں نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی سطح پر جاری کشیدگی نے معیشت پر دباؤ ڈالا ہے۔ پاکستان نے مؤثر حکمت عملی کے ذریعے توانائی کی فراہمی کو برقرار رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے سبسڈی دی گئی ہے، جسے بعد میں ہدفی نظام میں تبدیل کیا گیا۔ وزیر خزانہ کے مطابق حکومت نے قرضوں کی بروقت ادائیگی یقینی بنائی اور معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات کیے۔ انہوں نے ٹیکس اصلاحات، نجکاری اور برآمدات کے فروغ کو اہم ترجیحات قرار دیتے ہوئے کہا کہ اصل چیلنج پالیسیز پر مؤثر عمل درآمد ہے۔ اختتام پر انہوں نے آبادی میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلی کو پاکستان کا بڑا چیلنج قرار دیا۔ امریکہ کی معروف تعلیمی درسگاہ ہاورڈ یونیورسٹی میں منعقدہ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع، سیاسی تاریخ اور عالمی معاملات میں فیصلہ کن کردار کے اعتبار سے اہم ترین ملک ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے دنیا کے محور کا درجہ اختیار کرنے کی پیشگوئی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دہائیوں پر محیط مثبت سفارتی کردار اور کاوشوں کے پس منظر میں پاکستان کا انتخاب امریکہ ایران مذاکرات کے لیے سہولت کار کے طور پر کیا گیا۔ اعتماد کے اس بھرپور اظہار کے لیے ہم دونوں ممالک کے مشکور ہیں اور اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ اور پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے اسلام آباد مذاکرات کو پائیدار سفارتی فریم ورک کی بنیاد قرار دے دیا ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں ایرانی سفیر نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات ایونٹ نہیں بلکہ ایک عمل ہے جس نے پائیدار سفارتی فریم ورک کی بنیاد رکھ دی ہے۔ رضا امیر مقدم نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیک نیتی پر مبنی اقدام پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ہیں۔ پاکستانی اداروں نے مذاکرات کے نکات کو یقینی بنانے کے لیے انتھک کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت، فوج، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی انتھک کوششوں سے مذاکرات کا انعقاد ممکن ہوا۔ مہمانوں کو پرامن، منظم اور باوقار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مذاکرات کے لیے بہترین لاجسٹک سہولیات فراہم کی۔ اور اسلام آباد مذاکرات سفارتی میدان میں پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستانی قیادت کی انتھک کوششوں اور مؤثر سفارتکاری کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ آغا مسعود خالد کی رپورٹ۔ ایک ایسے وقت میں جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی اور خطے میں ایک بڑی جنگ کے خدشات منڈلا رہے تھے، پاکستان نے ایک ذمہ دارانہ اور متحرک سفارتی کردار ادا کیا اور دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہوا۔ ایران امریکہ کے درمیان تناؤ کی ایک تاریخ ہے۔ پاکستان اپنی مخلصانہ کوششوں، مؤثر حکمت عملی اور خطے میں اپنے اثر و رسوخ کی بدولت دونوں ملکوں میں جنگ بندی اور انہیں مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہوا۔ Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts
And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. इस्लामाबाद मुज़ाकरात मुसलसल 21 घंटे जारी रहे, जिनमें क़यादत और माहिरीन की सतह पर तमाम इशूज पर बात हुई। फरीकैन की जानिब से मुज़ाकरात के तसलसल पर आमादगी को एक मस्बत इशारा समझा जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में कशीदगी को खत्म कराने और पायदार अमन की राह हमवार करेंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तानी क़यादत की मौसर सिफारतकारी को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जिन्होंने दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। पाकिस्तानी क़यादत मुतलका फरीकों और खित्ते के मुल्कों के साथ मुसलसल राब्ते में रही और इन्हीं अनथक कोशिशों के बाइस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के संगे मील का हसूल मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की तारीख में ये एक दरख्शंदा बाब है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन में मौसर किरदार अदा किया है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों की कुर्बानियां हों या आलमी तनाज़ात का पुरअमन हल, पाकिस्तान का किरदार हमेशा एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। मकालमा और सिफारतकारी ही तनाज़ात के हल का बेहतरीन रास्ता है। दुनिया अब इस बात की मुंतजिर है कि ये इब्तदाई पेशरफ्त किस तरह एक जामे मुआहिदे की सूरत इख्तियार करती है। एक ऐसा मुआहिदा जो न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जमानत बनकर उभरे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी सियासत के मंजरनामे में पाकिस्तान ने एक अहम सफारती कामयाबी हासिल की है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले तारीखी मुज़ाकरात ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। आपको दिखाएंगे ज़ीशान अहमद खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम और तारीखी मुज़ाकरात का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करना और सिफारती हल की राह को हमवार करना था। खित्ते की कशीदगी में कमी, बाहिमी एतमाद साजी और मुज़ाकरात का तसलसल वो हसास उमूर है जिन पर दोनों ममालिक की आला क़यादत ने बातचीत की और एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान की काविशों के बाइस मुज़ाकरात किए। दुनिया भर के तूल अर्ज़ से सिफारती, माशी, सियासी सतह पर ममालिक पाकिस्तान की इस सालसी को कदर की निगाह से देख रहे हैं और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं, जबकि हर पाकिस्तानी इस सालसी पर फख्र करते हुए इसे ग्रीन पासपोर्ट की कदर मंजिलत में इजाफे का सबब समझता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल साहब ने जो उसमें अपना बढ़ चढ़ के रोल प्ले किया और दोनों बड़ी पार्टियों को टेबल टॉक्स पे लाए। इंशाल्लाह जल्दी एक अच्छी खबर आएगी। और दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की खिदमत को भी सराहते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा अहम किरदार अदा करा है। जहाँ दो ममालिक आपस में लड़ रहे थे तो सालिसी का किरदार अदा किया गया। पाकिस्तान ने दुनिया को बचा दिया, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अहम चीज़ है और मैं बतौर पाकिस्तानी इस पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। हमारे आर्मी चीफ का जो किरदार था और शहबाज शरीफ का जो किरदार है वो पूरी दुनिया के सामने है। इसी कोशिशों और काविशों की वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ज़बरदस्त किस्म का किरदार है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये मुज़ाकरात न सिर्फ पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है बल्कि आलमी अमन के लिए एक मज़बूत पेशरफ्त भी है, जबकि पाकिस्तान ने एक बार फिर ये वाज़ेह किया है कि वो खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मुज़ाकराती सिलसिला जारी रहता है तो इसके मज़बूत असरात मशरिक़ वस्ता समेत आलमी सतह पर भी दूररस असरात मिलेंगे। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक ईरान इसराइल जंग पर खामोशी इख्तियार करने की वजह से मोदी सरकार को मुल्क के अंदर शदीद तनकीद का सामना है। पाकिस्तान इसराइल के साथ तनाव के बावजूद इस बहरान में एक कलीदी फरीक के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार पर भारतीय अपोजिशन क़यादत की जानिब से शदीद रद्दअमल और गुस्से का इजहार किया गया। कांग्रेसी लीडर शशि थरूर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान सफारती तौर पर भारत से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। माहिरीन के मुताबिक भारत के हिंदू इंतहा पसंद हलकों में इसराइल की हिमायत इस्लाम मुखालिफ नज़रियाती मुमासलत पर मबनी है, जिसने भारत को दुनिया में तनहा कर दिया है। पाकिस्तान बेहतरीन सफारतकारी और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत दुनिया में एक बाएतमाद और बावकार ताकत के तौर पर उभर चुका है। और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में रवां साल की दूसरी इंसदादी पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ हो गया। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
19 अप्रैल तक जारी रहने वाली इस मुहिम के दौरान 4 लाख से जायद फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन फराहम करेंगे। इस मुहिम के दौरान विटामिन ई की इजाफी खुराक भी फराहम की जाएगी। ये मुहिम अफगानिस्तान के साथ हम आहंगी में भी जारी है, जिसका मकसद सरदपार वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत और मुश्तरका इक़दाम को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म की फोकल पर्सन इंसदादे पोलियो आयशा रज़ा फारूक ने कहा है कि ये मुहिम इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को 2 कतरे पिलाए जाएं, ताकि बाकी मांदा खला को पुर करके हम अपने हदफ के हुसूल के करीब पहुंच सकें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में अवाम से ताउन की अपील की है। उन्होंने कहा कि अवाम मुल्क गिर इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम में भरपूर ताउन करें और यकीनी बनाएं कि हर बच्चा इस बीमारी से महफूज रहे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स की खिदमत को भी सराहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मुल्क को पोलियो से पाक करना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत सेहत की बुनियादी सहूलियात आवाम के दहलीज तक पहुँचाने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। कराची में पोलियो बचाओ मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि 7 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान सूबे में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए 94 लाख बच्चों को विटामिन ए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में 83,000 तरबियत याफ्ता फ्रंट लाइन वर्कर्स और 24,000 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। इससे कबल वज़ीर आला ने क्लासरूम्स में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। आज़ाद कश्मीर में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया है, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 7 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट करेंगे अदील अहमद खान। वज़ीर सेहत-ए-आमा और बहबूद आबादी आज़ाद कश्मीर सैयद बाज़र अली नकवी ने मुजफ्फराबाद में महकमा सेहत के तोसीही प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात के मरकजी दफ्तर में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 3 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। आज़ाद कश्मीर में इंसदादे पोलियो मुहिम 13 से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसके तहत 7 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर, जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता 26 साल से जो है वो पोलियो फ्री जोन है, पोलियो फ्री स्टेट है। तो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनकी बड़ी मेहनत और जफाकशी इसमें शामिल है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो तमाम शुबाए ज़िंदगी के लोगों का इसमेमें कंट्रीब्यूशन है। 8,000 के करीब हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं ये घर घर जाएंगी, फिक्स साइट्स पे भी होंगी और ट्रांजिट पॉइंट्स भी हमारे 164 जो हमारे ट्रांजिट पॉइंट हैं, जो हमारे मुख्तलिफ अड्डों पे या चुंगी पे मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, वहाँ भी हमारी जो गाड़ियों के अंदर उनकी स्क्रीनिंग भी करेंगी। प्रोविजनल प्रोग्राम मैनेजर EPI आज़ाद कश्मीर डॉक्टर सरदार मंजूर हुसैन ने वज़ीर सेहत-ए-आमा को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि आज़ाद कश्मीर गुज़श्ता 25 सालों से पोलियो फ्री है। वज़ीर सेहत-ए-आमा ने महकमा की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान करते हुए रियासत का पोलियो फ्री स्टेटस बरकरार रखने के लिए इंसदादे पोलियो मुहिम को मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत की। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। पेशावर और खैबर में 7 जबकि सूबे के बाकी अजला में 4 रोज़ा मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के दौरान तकरीबन 65 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए मजमूई तौर पर 35,500 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। और महकमा सेहत और मुतालिका इदारों ने वालिदैन से अपील की है कि वो बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं और टीमों के साथ ताउन करें। और जिला बहावलपुर में आज से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 8,13,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने विक्टोरिया अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पोलियो का खात्मा हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है और इस मकसद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोकार ला रहे हैं। कमिश्नर बहावलपुर ने अस्पताल के शोबा एमरजेंसी का भी दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ काउंटर्स और शोबों में तिब्बी सहूलियात का मुआयना करते हुए इंतजामिया को हिदायत की कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवामुन्नास को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। ओकाड़ा में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने DHQ अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर फवाद इफ्तिकार और महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिले भर के 6,55,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए जिले भर में
2564 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ ہسپتالوں میں 141 فکس ٹیمیں بھی ویکسینیشن کے لیے موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کا کہنا تھا کہ والدین بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ آپ کو لیے چلیں گے چنوٹ کی جانب۔ چنوٹ میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مہم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر چنوٹ عائشہ رضوان نے بچوں کو حفاظتی قطرے پلا کر کیا۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ضلع بھر میں 13 اپریل سے شروع ہونے والی اس خصوصی مہم کے دوران 2,95,263 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے لیے 1467 ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہوں گی جو گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ والدین اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلائیں۔ وفاقی وزیر جام کمال خان کے زیر صدارت ڈیری سیکٹر سے متعلق اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں ڈیری سیکٹر کو درپیش ٹیکس اور ٹیرف چیلنجز سمیت ڈیری مصنوعات پر 18% GST کم کرنے کی تجویز زیر غور آئی۔ صرف پروسیجرائزڈ اور پیک شدہ دودھ کی فروخت یقینی بنانے اور بڑے شہروں میں پائلٹ منصوبوں کے ذریعے ڈیری سیکٹر کی باضابطہ تشکیل کی تجویز بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر نے دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے جنیاتی معیار بہتر بنانے اور ڈیری سیکٹر کی معیشت میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے جامع پلان تیار کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کسانوں کے لیے مالی معاونت اور بینکنگ سہولیات فراہم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بریڈنگ پروگرامز اور کسانوں کی تربیت کو بھی ناگزیر قرار دیا۔ اس موقع پر رانا احسان افضل کو جامع تجاویز تیار کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ وہ ڈیری سیکٹر میں اصلاحات لانے کے لیے جام کمال وزراء اعلیٰ کو خط لکھیں گے۔ اور پاکستان کی فارما صنعت ترقی کی نئی بلندیوں کی جانب گامزن۔ SIFC کی پالیسی معاونت اور ادارہ جاتی تعاون کے نتیجے میں فارما صنعت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو رہی ہے۔ پاکستان کے فارماسیوٹیکل شعبے کا منافع 2025 میں 78% اضافے سے 42.2 ارب روپے کے ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا۔ ڈی ریگولیشن کے بعد بہتر قیمتوں اور کم لاگت کے باعث پاکستان کے فارماسیوٹیکل سیکٹر نے ریکارڈ منافع حاصل کیا ہے۔ 2025 میں قیمتوں میں بہتری کے باعث فارما سیکٹر کی نیٹ فروخت 14% بڑھ کر 365.7 ارب روپے ہو گئی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سامتے فارماسیوٹیکل توقیر الحق کے مطابق 2025 فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے ایک اچھا سال رہا، جس میں ادویات تک رسائی بہتر ہوئی۔ 2025 میں فارماسیوٹیکل برآمدات میں 34% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ توقیر الحق نے کہا کہ SIFC نے پالیسی سازی میں معاونت فراہم کی اور انڈسٹری اور ڈریپ کے درمیان مؤثر تعاون کو فروغ دیا۔ SIFC کی پالیسی معاونت اور سازگار کاروباری ماحول سے فارما سیکٹر میں ترقی اور سرمایہ کاری کا رجحان مضبوط ہو رہا ہے۔ اور ڈیجیٹل خلیج کم کرنے کے لیے SCO کا اہم اقدام۔ افتخار آباد بھمبر میں 4G سروس متعارف کرا دی گئی ہے۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے افتخار آباد بھمبر آزاد کشمیر میں ٹیلی کمیونیکیشن سروسز 2G سے ہائی سپیڈ 4G میں اپ گریڈ کر دیا ہے۔ 4G اپ گریڈیشن سے صارفین کو ہموار رابطہ، تیز رفتار ڈیٹا سروس اور مضبوط سگنلز دستیاب ہوں گے۔ SCO کی جانب سے مہیا کردہ جدید 4G سروسز سے طلبہ، کاروباری افراد اور عام صارفین مستفید ہو سکیں گے۔ اہل علاقہ نے 4G اپ گریڈیشن اور جدید سہولیات کی فراہمی پر SCO اور DG SCO کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2G سروس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیٹ کے استعمال اور آن لائن کام کرنے میں شدید مشکلات پیش آتی تھیں۔ کم رفتار انٹرنیٹ کے باعث ہماری ڈیجیٹل سروسز بری طرح متاثر ہوتی تھیں۔ کام میں تاخیر اور رکاوٹیں معمول کا حصہ تھیں۔ اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ تیز رفتار انٹرنیٹ کی بدولت اب ہمارا آن لائن کام زیادہ مؤثر، ہموار اور بروقت مکمل ہو رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے تشدد، بلا جواز گرفتاریوں اور ظالمانہ سینسرشپ نے آزاد صحافت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ افغانستان میڈیا سپورٹ آرگنائزیشن نے افغان طالبان کے زیر حراست صحافیوں شکیب احمد، بشیر عاطف، حمید فرہادی اور دیگر کی حالت ذات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاری کردہ بیان میں صحافتی تنظیم نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم میں صحافیوں کی بلا جواز گرفتاریوں اور ناجائز حراست نے خوف، دباؤ اور عدم تحفظ کی فضا کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ طالبان کے ہاتھوں گرفتار صحافی محض عوام تک سچ اور معلومات پہنچانے کی پیشہ ورانہ ذمہ داری انجام دے رہے تھے۔ صحافیوں کی غیر جانبداری حراست تمام بین الاقوامی معاہدوں اور مہذب اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم میڈیا اور صحافیوں پر بلا جواز پابندیاں لگا کر اپنی آمریت اور ناکام پالیسیوں پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے۔ انسانی حقوق کی سنگین پامالی، میڈیا پر پابندیاں اور دہشت گردوں کی سرپرستی اب افغان طالبان رجیم کی شناخت بن چکی ہے۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کی یادوں سے منسوب تاریخی گردوارہ کیارا صاحب کی مکمل بحالی، توسیع اور نئے رہائشی بلاک کی تعمیر کے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور پنجاب سردار رمیش سنگھ اروڑا نے منصوبے پر کام کا افتتاح کیا۔ مزید جانتے ہیں جاوید احمد معاویہ سے۔
अक़लीती अमूर के सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन नासिर मुश्ताक के हमरा गुरुद्वारा कैरा साहब की बहाली और नए रहायशी ब्लॉक की तामीर के काम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि पंजाब में इस वक्त 17 गुरुद्वारों की बहाली के मंसूबों पर काम जारी है। आइंदा 3 सालों में 54 गुरुद्वारों को मुकम्मल बहाली के बाद सिखों के हवाले कर दिया जाएगा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक विजन था कि हमने पंजाब के अंदर जितना सिख हेरिटेज है, जो गुरुद्वारा साहबान जिनकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, उनको प्रिजर्व करना। और इस रिहायशी कमरे अटैच बाथरूम्स के साथ बनाए जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बहुत ही बड़ा लंगर हॉल और मॉडर्न स्टाइल के ऊपर किचन बनाए जाएंगे। सानू विसाखी के मौके के उत्ते गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा तोहफा दिता है कि साडा यह गुरुद्वारा बनन जा रहा है। मैनू माण है पाकिस्तानी होने ते। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पेंगाबाद। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ सेम डिजाइन ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰग ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। गुरुद्वारों की बहाली के मंसूबों से मुल्क में मजहबी सियाहत और बैनुल मज़हब अमांगी को फरोग हासिल होगा। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में सिख मजहब के त्यौहार मेला वैसाखी की तकरीबात जारी हैं, जिनमें हज़ारों सिख यात्री बिलखुसूस भारतीय सिख यात्री शरीक हैं, जो नहायत अकीदत के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जगह जगह तैनात है ताकि यात्रियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। यात्रियों के लिए रिहाइश, खाने पीने और ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन इंतजाम भी किए गए हैं, जिस पर सिख यात्री खुशी और इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं। और अभी आपको लिए चलेंगे वेदर अपडेट की जानिब। वेदर अपडेट में खुशामदीद नाज़रीन। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि दिन के दौरान वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। ताहम शिमाली मगरबी बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। ताहम सिंध और बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर वियतनाम का दारुल हुकूमत हिनोई रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का शहर कराची रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रहा। तीसरे नंबर पर कुवैत सिटी रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 रहा। चौथे नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 139 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 138 रिकॉर्ड किया गया। छठे और आखिरी नंबर पर अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल रहा, जहां मौसम का अहवाल आपने मुलाहिजा किया। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। आलमी मंजरनामे में आपको बताएं कि हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन ने गैर मामूली कामयाबी हासिल कर ली, जिसके बाद वज़ीर आज़म विक्टर ऑरबान की 16 साला इक़्तिदार का खात्मा हो गया। विक्टर ऑरबान जो ट्रंप के हामी हैं, उन्होंने हरीफ कदामत पसंद रहनुमा पीटर मेजॉर से शिकस्त तस्लीम कर ली है। यूरोपीय रहनुमाओं ने हंगरी में अपोजिशन की जीत को यूरोप की जीत करार दिया है। अपोजिशन लीडर मेजॉर ने नए सियासी रहनुमा हैं, जिन्होंने निज़ाम की तब्दीली का वादा किया है। पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी कामयाबी के बाद हामी सड़कों पर निकल आए और जीत का जश्न मनाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर पीटर मेजॉर को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हंगरी के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। लेबनान पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी है। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल के जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर ताज़ा हमलों के नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिससे खत्ते में इंसानी बहरान संगीन होता जा रहा है। जनूबी लेबनान के ज़िला सौर के कस्बे मारूब में इजरायली हमले के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जनूबी कस्बे काना में भी एक हमले में 5 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला है।
आलमी सियासत के उफक पर पाकिस्तान एक बार फिर अमन के सफीर के तौर पर उभरा है। अमरीका और ईरान की जंग बंदी के दौरान मुज़ाकरात और जंग बंदी की कोशिशों में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार के हवाले से आपको दिखाएंगे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को यकीनी बनाने और मुस्तकिल अमन के कयाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को हर सतह पर सराहा जा रहा है। पूरी दुनिया में इस हवाले से पाकिस्तान का मुस्बत और तामीरी किरदार नुमाया हुआ है। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि पाकिस्तान फ्रीकैन के दरमियान राब्तों और तनाज़ात के पुरअमन हल की खातिर मौसर किरदार अदा करने की पॉलिसी पर कारबंद है। पाकिस्तान ने नेक नीति के साथ और खुलूस नीयत के साथ ये सारा इक़दाम किया। बहुत बड़ा एजाज़ है और पूरी कौम के लिए एजाज़ है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा किरदार अदा किया है, बहुत बड़ी जंग को रोका है। ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिश की है और एक सालिस के तौर पे उभरा है। इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी बिरादरी की तवज्जो का मरकज बन गया है और पूरी दुनिया इस अहम किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। अमेरिका, ईरान और आर्मी बिरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान बहैसियत सालिस एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान की जो मुखलिसाना कोशिशें हैं उनकी वजह से अमेरिका का और ईरान के जो वफूद है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए और उन्होंने बैठकर मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश की। अक़वाम आलम की जानिब से पाकिस्तान की कौमी क़यादत की पुरखुलूस कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। ये एतमाद इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात के साथ साथ आलमी अमन के तकाज़ों को भी पेश नज़र रखता है। पाकिस्तान की ये कोशिशें इस असूल पर मबनी है कि तनाज़ात का हल बाहमी तामुन और मुज़ाकरात से निकाला जाए। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अमेरिका और ईरान के माबैन जारी जंग रुकवाने में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुतरफ। पाकिस्तान की जानिब से अमन के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मजीद जानते हैं अदनान शाह से। अमेरिका और ईरान के माबैन इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात को माहिरीन बैनुल अक़वामी उमूर सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। पेशावर की सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने भी दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान की मुस्बत सिफारतकारी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से दुनिया के अमन के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है इसको डिकेड्स के लिए जो है ना दहाइयों तक इसको याद रखा जाएगा। इससे एक बहुत बड़ा पैगाम इंटरनेशनली जाएगा कि पाकिस्तान न सिर्फ अंदरूनी तौर पर अमन चाहता है बल्कि इंटरनेशनली भी अमन चाहता है। ये सिलसिला भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज़ बना है, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आया था और वफाकी वजारत इत्तलाआत और नशरियात ने जिस शानदार तरीके से इंतज़ामात किए थे, तो आलमी मीडिया ने पहला तासुर तो इन इंतज़ामात के हवाले से लिया। पाकिस्तान में उस टास्क का होना, उनको होस्ट करना और उनके लिए एक चैनल खोलना, ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो सालिस का किरदार अदा किया है वो एक अरसे तक याद किया जाएगा। सहाफ़ियों और शहरियों का कहना है कि कई दिहाइयों के तनाज़े का खात्मा एक नशस्त में मुमकिन नहीं, इसके लिए वक्त और मज़ीद नशस्तें दरकार है, जिसके लिए पाकिस्तान की काविशें जारी है और वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान अपनी नेकनियती पर मबनी कोशिशों में कामयाब होकर दुनिया को इस जंगी माहौल से निकाल लेगा। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे और आलमी अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार को अवामी हलकों की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। अवाम का कहना है पाकिस्तान की मतवाज़न खारजा पॉलिसी दुनिया में अमन के फ़रोग़ का बाइस बनी है। गज़र से हिदायत शाह की रिपोर्ट। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर अमन के क़याम के लिए मौसर कोशिशें जारी रखे। अवामी हलकों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बित किरदार अदा किया है। आज पाकिस्तान को जो सोहरोई हासिल हुई है वो उनके फैसलों की वजह से, हमारी पाक फौज की इस्तेकामत की वजह से और हमारी जो मुल्क की लीडरशिप है उनकी बुर्दबारी की वजह से आज मुल्क का नाम रोशन हुआ है। इसका क्रेडिट हमारी सियासी ताकत, हमारी अस्करी ताकत और पाकिस्तान की वो अंदर से अवामी और अस्करी और टेक्नोलॉजी और पाक फिजाए समेत पाक नेवी और पाक फौज की जो ताकत है, उस ताकत को दुनिया ने महसूस भी किया और उसको तस्लीम भी किया। हिदायत शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला गजर।
मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मामलकत डॉक्टर शशा मनसब ने कहा है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के माबैन बातचीत से बर्फ पिघली है, मामलात के हल होने में वक्त लगता है। ननकाना साहब में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शिजरा मनसब का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात करवाकर तारीखी कामयाबी हासिल की है। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के माबैन बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। उनका कहना था कि पूरी दुनिया ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने हुकूमत पंजाब की 2 साल कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। राय आमा सर्वे में 69% अफराद ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत पर इजहार इत्मीनान करते हुए पंजाब की तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दिया है। अवामी सर्वे में 32% अफराद ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, जबकि 31% ने गुड करार दिया। नौजवानों की अक्सरियत भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मद्दाह निकली। सूबे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 42% अवामी मकबूलियत हासिल। सर्वे के मुताबिक तरक्याती मंसूबे शुरू करने से मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा हुआ। 55% अफराद ने सर्वे में मरियम नवाज की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के अज़्म का इजहार किया। सर्वे में सफाई के निज़ाम में बेहतरी, हेल्थ और एजुकेशन इस्लाहात, महंगाई में रिलीफ के इक़दाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसंत की बहाली पर अवामी राय के मुताबिक 65% अफराद ने पंजाब को तरक्की की दुरुस्त समत पर गामजन करार दिया। IPOR सर्वे में हिस्सा लेने वाले 57% अफराद का ताल्लुक देही इलाकों, 43% का ताल्लुक अर्बन एरियाज से है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए AIO खुसूसी इक़दामात अली डार से नेस्ले पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद यावर अली की क़यादत में आला सतह वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस वफ़द में डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात भी शामिल थी। वफ़द ने गुज़श्ता 10 साल के कामयाब इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में वाइट रेवोल्यूशन मॉडल अपनाने पर गौर किया गया। अली डार ने कहा कि लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल नागुज़ीर है और हुकूमत इस हवाले से मुकम्मल ताउन फ्राहम करेगी। फ्रीकैन ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए किसानों को बराह रास्त फायदा पहुंचाने और डेयरी सेक्टर को जदीद खतूत पर उस्तवार करने पर इत्तफाक किया। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि 18 अप्रैल से हज वीज़ा होल्डर्स के सिवा किसी भी किस्म के वीज़ा होल्डर्स को मक्का मुकरमा में क़याम की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को परमिट के बगैर आज से दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 18 अप्रैल तक उम्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा समेत दीगर वीज़ा होल्डर्स मक्का मुकरमा छोड़ दें। खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने और कैद की सज़ा दी जा सकती है। और बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों को महफूज बनाने के लिए काम का आगाज़ किया गया है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बैतुल्लाह शरीफ के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से की दीवारों को मजबूत और महफूज बनाने का अमल शुरू किया गया है, जिसके लिए माहिर कारीगरों की खिदमात हासिल की गई हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि अगले चंद दिनों में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद के निजी शॉपिंग मॉल में 3 रोज़ा जेम्स एंड ज्वेलरी नुमाइश जारी है। इस नुमाइश में पाकिस्तान भर से नायाब और कीमती पत्थरों के अलावा जदीद तरीन डिज़ाइन की ज्वेलरी भी रखी गई है, बता रही हैं मरियम मलिक। इस्लामाबाद के मारूफ मॉल में खूबसूरती, नफासत और हुनर का दिलकश इम्तिजाज देखने को मिल रहा है, जहां जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी नुमाइश ने शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। नुमाइश में पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान से लाए गए नायाब पत्थर, जुमुर्द, याकूत, नीलम और टपास मरकज़े निगाह बने हुए हैं। नुमाइश का मकसद माइनिंग से वाबस्ता अफराद और ज्वेलर्स को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, ताकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में इजाफा हो सके। पाकिस्तान का जो सबसे बेहतरीन स्टोन है पेरीडोट, ये बहुत निकलता है, तो बाहर ममालिक के जितने भी लोग हैं उनको हमारी इधर स्टोन की पहचान हो जाती है। ये तकरीबन साल में 2 इवेंट्स होते हैं, आउटलेट्स नहीं है या हम लोग अफोर्ड जो नहीं कर सकते लोग, वो यहाँ पे आए हैं और बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं और हुंजा, गिलगित, स्कर्दू और वहाँ से ये अपने स्टोन्स वगैरह लेके आए हैं। इसमें डायमंड्स भी हैं। मैं हर साल यहाँ पे इस इवेंट में आती हूँ। जेम स्टोन्स के भी हैं, उसके बाद स्टेनलेस स्टील में भी हैं जो चाइना से भी इंपोर्ट होते हैं, और हमारे पाकिस्तान के भी काफ़ी स्टोन्स के मुतल्लिक़ यहाँ पे एग्जीबिशन एक लगी हुई है, जिसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ख़वातीन के लिए सोने और चांदी में जुड़े कीमती पत्थरों के ज़ेवरात ख़ुसूसी कशिश रखते हैं। नुमाइश में जहाँ खाम पत्थर मौजूद है, वहीं माहिर कारीगरों के तैयार करदा नफीस डिज़ाइन भी नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। ज्वेलरी बहुत अच्छी है, स्टेनलेस
फील है और ये ना स्वेटिंग से ख़राब होता है, ना शॉवर से, ना पानी से, ना शैम्पू से। आप इजीली इसको डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट मैंने स्टोन्स देखे हैं, रूबी और डिफरेंट बड़े अच्छे अच्छे यूनिक जो मुझे भी नहीं पता था, और ये ज्वेलरी मैंने देखी है, अच्छी है, अपनी वालदा के लिए मैंने परचेज़ की है, बहुत अच्छा इवेंट है। पाकिस्तान दुनिया में कीमती पत्थरों के ज़खायर के लिहाज से 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान के कीमती पत्थर दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं और इस्लामाबाद के मरकज में ये नुमाइश इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अगर इनको दुरुस्त प्लेटफॉर्म मिले तो ये शोबा मुल्क की तकदीर बदल सकता है। नुमाइश कल तक जारी रहेगी। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हम आ गए हैं, हम छा गए हैं, मैदानों में हम आग लगा देंगे। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज भी एक मैच खेला जाएगा। इवेंट के 22वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में हैदराबाद किंग्समैन की 4 मुसलसल नाकामियों के बाद लगातार दूसरी कामयाबी। इवेंट के 21वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। कराची में हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। डेवन कॉनवॉय ने 31 गेंदों पर 45 रन बनाए। मार्क चैपमैन ने 42 रन की इनिंग्स खेली। समीर मिनहास 22 और मोहम्मद फाइक 18 रन बना सके। किंग्समैन की जानिब से डेब्यूटेंट आसिफ महमूद ने 4 विकेटें हासिल की। उन्होंने 4 खिलाड़ियों को इनिंग्स के आखिरी ओवर में चलता किया। मोहम्मद अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हैदराबाद किंग्समैन ने 154 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर मास सदाकत ने 30 रन बनाए। कप्तान मांस लबुशेन ने 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने 35 और ग्लेन मैक्सवेल ने नॉट आउट 21 रन स्कोर किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से फहीम अशरफ और क्रिस ग्रीन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। क्या एम्बिशंस हैं या क्या सोच है कि मैंने ये चीज़ ज़रूर हासिल करनी? फीफा सीरीज में पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम को मोरितानिया के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा। एवरी कोस्ट में जारी फीफा सीरीज में मोरितानिया की विमेंस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी हासिल की। खेल के 20वें मिनट में रमाता के गोल ने मोरितानिया को बढ़तरी दिलाई, जो कि आखिर तक बरकरार रही। इटली के यानिक सिनर ने मोंटी कार्लो मास्टर्स के सनसनीखेज फाइनल में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज को शिकस्त देकर न सिर्फ टाइटल अपने नाम किया, बल्कि आलमी नंबर 1 पोजीशन भी दोबारा कब्जा जमा लिया। फ्रांस में खेले गए मास्टर्स 1000 क्ले कोर्ट इवेंट के फाइनल में यानिक सिनर ने स्पेन के नामवर खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को स्ट्रेट सेट्स में हराया। सिनर ने अल्कराज को 7-6 और 6-3 से मात दी। यानिक सिनर का क्ले कोर्ट पर यह पहला मास्टर्स टाइटल है। इस जीत के साथ ही सिनर ने आलमी रैंकिंग में अल्कराज से पहली पोजीशन भी वापस ले ली। यानिक सिनर दुनिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीजन में सनशाइन डबल, इंडियन वेल्स और मियामी के साथ मोंटी कार्लो का एजाज भी जीता है। इससे कबल ये कारनामा सिर्फ नोवाक जोकोविच ने 2015 में अंजाम दिया था। सिनर का ये मुसलसल चौथा, जबकि मजमूई तौर पर कैरियर का 8वां मास्टर्स टाइटल है। बेल्जियम के वोट वैन एर्ट ने दुनिया की मुश्किल तरीन एक रोज़ा रेस पेरिस रूबे जीतकर तारीख रकम कर दी। उन्होंने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 मरतबा के टूर डी फ्रांस चैंपियन स्लोवेनिया के तादिज पोगाचर को मात देकर टाइटल अपने नाम किया। पेरिस रूबे साइकिल रेस को कठिन और पथरीली राहों की वजह से शिमाल का जहन्नुम भी कहा जाता है। रेस 258.3 किलोमीटर के फासले पर मुहित थी। रेस के इख्तिताम से 50 किलोमीटर कबल वोट वैन एर्ट और तादिज पोगाचर ने दीगर तमाम हरीफों को पीछे छोड़ते हुए बढ़तरी हासिल की। रोबे वेलोड्रोम में बेल्जियन साइकिलिस्ट के तेज स्प्रिंट ने पोगाचर को पीछे छोड़ा। वोट वैन एर्ट ने मुकर्ररा फासला 5 घंटे 16 मिनट और 52 सेकंड में तय किया। तादिज पोगाचर को दूसरी पोजीशन पर इक्तफा करना पड़ा। बेल्जियम के जेस्पर स्टेवन ने पोडियम मुकम्मल किया।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को शिकस्त दे दी है। लंदन में मैनचेस्टर सिटी ने खेल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। सिटी की जानिब से पहला गोल निको ओरेली ने 51वें मिनट में किया। स्पेनी फुटबॉल लीग ला लीगा में विलारियल ने एथलेटिक क्लब को हरा दिया। बिलबाओ में खेले गए मैच में विलारियल ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल की। फातेह टीम ने दोनों गोल पहले ही हाफ में किए। खेल के 26वें मिनट में सर्जी कार्डोना ने गोल करके विलारियल को बढ़तरी दिलाई। पहले हाफ के इख्तितामी लम्हात में एनफन गोंजालेस ने बढ़तरी दुगनी कर दी। एथलेटिक क्लब की जानिब से वाहिद गोल गोरका ने खेल के 84वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर विलारियल 61 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। बार्सिलोना 79 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।